Good evening, friends. Today we are going to discuss the most important chapter of the class 11th accounts. This is most important chapter of the class 11th accounts. Chapter number 4, that is double interest system. Good evening all. Before this, we all have cleared all three chapters: basic terms, accounting equations, and meaning of accounting, meaning and definitions of objectives of accounting. We have discussed all these things in the previous chapter. If you want to see the videos according to the serial wise, you go in my YouTube channel and click on the playlist, and you will get what? Class 11th accounts. Okay, if you will click class 11th accounts, then you will get all the videos in serial wise, topic wise or chapter wise. Getting you all? So for today, you all are going to discuss the most important chapter for the class 11th accounts, that is double interest system. Double interest system. Already you all are introduced from this name. सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग सुन चुके होंगे डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या है. आइए जान लेते हैं क्या है डबल इंटरेस्ट सिस्टम. अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या है? अंडर double interest system, the transaction, each transactions has two aspects. Each transaction has two aspects. One is debit and another is credit. One is debit and another is credit. Under double interest system, we consider both aspect of the transaction. ओके, क्या मैंने लिखा? व्हाट आई हैव रिटन? लिखा है ये अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम. अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम्स, ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. ईच transactions, whatever transactions we are recording in our books of account, means which are in the terms of money, whatever transactions we are recording has two aspects. Two aspects means दो पक्ष. किसी भी ट्रांजैक्शन से कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं. दो पक्ष होते हैं. अभी तक तो हम लोग ने एक ही पक्ष जाना था, क्या गया लेके चला है, दूसरे वाला क्या जाने, आई डोंट नो. लेकिन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, we are operating a business concern and we are maintaining the books of account for our business concern. Getting you all? तो निकलता क्या है? Each transaction has two aspects. One is debit side, one is debit. See here, one is debit and another is credit, and second one is credit. Getting you all? Okay. Under double interest systems, we consider both aspects of the transactions. मतलब दोनों aspects को हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों aspect को हम कंसीडर करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. क्लियर? अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन. क्या? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन rupees 40,000.
क्या ट्रांजेक्शन क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब ये ट्रांजेक्शन क्या है? इसमें दो पक्ष है, एक कैश रिसीविंग, कैश को रिसीव करने वाला पक्ष, और दूसरा कैश को देने वाला पक्ष। ठीक है, मीन्स कैश भी है और मोहन भी है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स हैं, और हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन में। अब ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर है? मीन्स हाउ वी विल रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शंस, how we will record the both aspect of the transactions, we will learn in the next videos, okay, or in the next concepts, okay, my dear students. So there are two accounts, one is debit and another one is credit, okay, means according to the nature of account we will do the debit and we will do the credit. Okay, according to the nature of account we will do the debit and do the credit. Clear? So what I am saying, there are two accounts and we will record both accounts of the transactions in our books of account. This is the double entry system. क्या है? यही डबल एंट्री सिस्टम है। क्या? हर ट्रांजेक्शन्स के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है। क्लियर है? और अंडर डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों पक्ष को, दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसलिए क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। क्लियर? फॉर योर नॉलेज कंसर्न आई एम टेलिंग यू द हिंदी नेम, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन और एग्जाम्पल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, ओके। One thing, debit and credit. How we will do? कैसे हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट? किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, किसी भी अकाउंट को हम कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे, इसी चीज को हम सीखने जा रहे हैं। क्या? अब वो कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है सिंपल टर्म खाते। अकाउंट्स मीन्स खाते, ओके। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, हम जा रहे हैं सीखने क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक पे पूरा आगे का चैप्टर डिपेंड है। ये जो चैप्टर है पूरा आगे का पूरा वीडियो, इसी पूरे चैप्टर्स जो है इसी पे एक तरीके से बेस्ड है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली आगे बहुत इजीली कर ले जाओगे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए क्या है क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। अब क्या होता है अकाउंट, देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। क्या मैंने लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, ओके। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट are those type of accounts, या under personal accounts we consider, under personal account we consider, ध्यान से देखिएगा क्या है under personal account we consider any individual मीन्स हम आप कोई भी, राम श्याम हरीश, ठीक है ना, एनी इंडिविजुअल पर्संस, ओके, एनी इंस्टीट्यूशंस, ओके, इंडिविजुअल पर्सनल्स, इंस्टीट्यूशंस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, any type of organizations like business organizations, there are different type of companies, okay,
trust, NGOs. So account of all these things, कौन कौन से? एनी इंडिविजुअल का अकाउंट, लाइक राम, श्याम, मोहन, आपका, मेरा, किसी भी चीज का अकाउंट हो, उसको हम किसके अकाउंट में कंसीडर करेंगे? पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सब चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अकाउंट आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर है, तभी आप आगे चीजों को कर पाएंगे। क्लियर? तो क्या है पर्सनल अकाउंट? क्या है? इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, इंडिविजुअल में आ गया। इंस्टीट्यूशंस जैसे कामन स्कूल, KIPM, any type of IIMs, क्या है? These all are institutions, and account of all these institutions we will consider under personal accounts. Any type of institutions, organizations. Organization means business organizations or any type of organizations. Account of any organizations we consider personal account. Trust. There are so many trusts are organized or operating or going on in our society. So the account of that type of trust, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट, ओके, या बहुत सारी समितियां चलती हैं, कमिटीज, तो ये इनके जो अकाउंट होंगे वो भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में हम कंसीडर करेंगे। एनजीओज, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे एनजीओ हैं जिनका अकाउंट भी हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में मेंशन करते हैं। तो क्या है पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन? आप क्या लिखोगे? पर्सनल अकाउंट आर दोज टाइप ऑफ अकाउंट विच आर कंसिडर, which are under individual, any account of any individual, any institutions, any organizations, any trust or any NGOs. Yeah, under personal account we consider individual, account of any individual, account of any institutions, account of any organizations, account of any trust or account of any NGOs. Account of all these things we will consider under personal account. Clear? Okay. Personal account. There are three type of account. कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, and third one is representative personal account. ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स एनी नेचर, मतलब एनी लाइफ हु हैज having life, okay, means natural persons like me, anyone, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। कोई भी नेचर या नेचुरल का हम अकाउंट खोलेंगे तो वो हम किसमें कंसीडर करेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। लाइक राम, मोहन, श्याम, अकाउंट क्या है? ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अब ये भी कहेंगे सर आर्टिफिशियल पर्सन भी आर्टिफिशियल होता है? यस, होता है। ये हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे इसको कैसे, क्या है, कौन से ऐसे बॉडीज हैं जिनको हम ऐसे पर्सन ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। कॉमर्स बिजनेस में, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? पर्सन को भी आर्टिफिशियल की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर? तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ऐसे पर्सन आ गए, कौन कौन से? जो लाइक एनी इंस्टीट्यूशंस, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ट्रस्ट, ये सब क्या है? दीज ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल, artificial, any institutions, organization, NGOs, trust. Representative personal account. Representative personal account, which represent
अ ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर दोज टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, जो किसी पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unaccrued income, unaccrued income, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, अब ये चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unaccrued income क्या है, they represent the person or group of persons that is called representative personal account। क्लियर हो गया। पर्सनल अकाउंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, किसको कहते हैं, अंडर पर्सनल अकाउंट विच कंसीडर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, एनजीओस। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स राम, मोहन, श्याम, आर्टिफिशियल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम। रूल, अब जो मैं ये बताने जा रहा हूं रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग लर्न कर लेंगे, क्लियर, और लर्न करके अच्छे से नोट्स बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर डेबिट the receiver and credit the giver, ठीक है, क्लियर हो गया। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्लियर। 3 अकाउंट हुए पर्सनल, ये पूरे पर्सनल अकाउंट के सबके फेवर में ये रूल है, सबके लिए, ठीक है ना। डेबिट द रिसीवर अंडर पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दिस इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट, अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पहला क्या है, रियल अकाउंट एंड दूसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस पोर्शन को डिलीट करूंगा, ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तभी चीजों को समझ पाओगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ओके। रियल अकाउंट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रियल अकाउंट, which can be measured in the terms of money, that is called real account, that is called real account। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं। तो which can be transferred, which can be measured, क्या लिखा है मैंने, जो भी एसेट्स
जो मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहेंगे या एसेट्स अकाउंट कहेंगे। क्लियर? लाइक कैश, कैश तो खुद ही कैश है, ये भी रियल अकाउंट होगा। एग्जांपल में बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, L/B I have written, plant and machinery, P/M, furniture and fixtures, okay. So goodwill, G/D, goodwill, patent. So these all assets we can measure in the terms of money. That is called real account. What? Real account are those type of account which we can measure in the terms of money. That is called real account. Example: cash, land and building, plant machinery, furniture, fixtures, goodwill, patent. These all are assets we can easily measure in the terms of money. Clear? Rules of real account most important है, इसको आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्या? डेबिट what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. क्या? Debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. ये आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है ना? ये रियल अकाउंट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। इसका डेफिनेशन बहुत इजी है, क्या? Which have no existence. Which have no existence. जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्रिएट हुआ, पे किया, खत्म हो गया, तो क्या हुआ? Which have no existence, that is called nominal account. ठीक है? Which have no existence, that is called nominal account. एग्जाम्पल में क्या हो गया? सैलरी, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, एंड एनी मेनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स, ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड, discount allowed. So all these are what? All these are nominal account. Clear? Nominal account which have no existence, that is called nominal account. और example क्या है? Salary, commission, rent, electricity bill, discount and discount allowed and discount and many of others. All are examples. Okay, I am not considering all examples. You can see in your book. Okay, rule क्या है? डेबिट रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे डेबिट क्रेडिट करो, ध्यान से सीख लो उसको। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों अकाउंट हैं इसके क्लासिफिकेशन से अकाउंट के, ठीक है ना? डबल एंट्री सिस्टम, अंडर डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स एंड वी रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ओके, डेबिट क्रेडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देयर आर थ्री टाइप. There are two type of account, personal and impersonal. Personal account, or under personal account, there are, we consider under personal account, we consider or account of any individual, account of any institutions, account of any organizations, account of any trust, NGOs, we will consider under personal account. Clear?
Natural personal account, there are three type of personal account. First one is natural personal account, second one is artificial personal account, and third one is representative personal account. Natural personal account, which are the natural persons, natural persons, which are natural things. The account of natural things we will consider under natural personal account, like Ram, Shyam, Mohan, any type of person that we will consider under natural personal account. Artificials, any type of institutions, organization, trust, NGOs, these all are called artificial persons, and we will consider under artificial personal account. Third one is representative personal account. Representative personal account are those type of personal accounts which represent a person or group of persons, that is called representative personal account. Example: outstanding salary, prepaid expenses, accrued income. These all are okay examples. The rule of personal account: debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. Real account. Real account number two. Real account number two. What? Real account which can be measured in the terms of money, that is called real account. Like cash, land and building, plant, machinery, and furniture, furniture, goodwill, patent, etc. Rule of real account. Rule of real account: what? Debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. Clear? Nominal account which have no existence, that is called nominal account. Example: salary, commissions, rent, electricity bill, any type of discount, expenses. ठीक है, all these type of expenses are we will consider under nominal account. Rule: debit all the expenses and losses. Debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. Getting all? Hope you all are getting. Okay, my dear friends, if you have any problem you can ask me. Okay, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, खैर टॉपिक भी ऐसा था, इसको आपको याद करना है. तीनों अकाउंट के रूल याद होने चाहिए आपको. बिना इसको याद किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो होप you all are getting all these points. If you have any problem you can ask in comments and my contact numbers. Okay, for today, thank you very much.